السلام علیکم۔ سیمینار وائی کے سے میں یاسمین خان اور آج 16 مئی 2026 ناظرین انٹرنیشنل نیوز میں میں آپ کو کچھ اپڈیٹس دے رہی ہوں کہ اس وقت چینی صدر نے آبنائے ہرمز کھولنے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ یہ ٹرمپ نے بیان دیا ہے، یعنی کہ آبنائے ہرمز آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایرانیوں نے بند کیا ہوا ہے، اور ابھی سلسلے میں ٹرمپ نے چینی صدر کے ساتھ بات کی، یعنی کہ شی جی پنگ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ہماری اس سلسلے میں مدد کریں گے۔ اب ٹرمپ نے ٹی وی کے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ چینی صدر نے کہا کہ اگر وہ لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ اس کے لیے تیار ہے، یعنی کہ چائنا، اور آپ نے ہرمز کھولا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب چینی صدر نے 200 بوئنگ جیٹس تیار کرنے کا بھی اتفاق کر لیا، یعنی کہ ٹرمپ نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں 200 بوئنگ جیٹس تیار کر کے دیں، اور چین ایران کو جو کہ کوئی فوجی ساز و سامان بھی نہیں دے گا۔ یہ ان کی میٹنگ کے دوران میں یہ بھی بات چیت ہوئی ہے کہ چائنا اب مزید ایران کو کوئی فوجی ساز و سامان نہیں دے گا۔ اب یہ تو ٹائم بتائے گا کہ وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد ناظرین، مشرقی وسطی میں دیرپا امن کے لیے سعودی عرب نے نئے معاہدے کا فارمولہ پیش کر دیا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب جنگ کے مسئلے جلد حل ہونے چاہیے، امریکہ کا ایران اور دیگر ممالک کے مفاد میں ہے، چینی وزارت خارجہ نے یہ بیان دیا ہے۔ اس کے بعد ایرانی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایک تجارتی جہازوں کے لیے کھلی اور ایرانی قوم امن پسند ہے۔ بیسیکلی تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز تو کھلی ہے، اور ایران جو ہے وہ ایک امن پسند قوم ہے، جنگ نہیں چاہتی۔ یہ ایرانی وزارت خارجہ نے بیان دیا ہے۔ اب اس کے بعد صدر پیوٹن، یعنی کہ جو کہ رشیا کے صدر ہیں، بہت جلد چائنا کا دورہ کریں گے۔ روس کی طرف سے یہ بیان آیا، اور اس دورے کی تیاریاں بھی اس وقت مکمل ہو چکی ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب جب مکمل ہو چکی ہے تو بہت جلد یہ دورہ ہوگا۔ اور امریکی صدر ٹرمپ بھی 3 روزہ چینی دورے سے واپس آ چکے ہیں۔ اب یاد رہے کہ پیوٹن، یعنی کہ رشیا کے جو صدر ہیں، اور چائنا کے شی جی پنگ گزشتہ برسوں کے دوران 40 سے زیادہ ملاقات آپس میں یہ لوگ کر چکے ہیں، یعنی کہ ان کا تو بڑی محبت پیار ہے، جو کہ 40 سے زیادہ یہ لوگ آپس میں 40 دفعہ سے زیادہ مل چکے ہیں۔ اور ان کی حالیہ ملاقات جو ہے وہ اب ستمبر میں بیجنگ میں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد عمان کی بھی ایک نیوز ہے کہ عمان کے ساحل پر بھارت کے تجارتی جہاز پر حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں جہاز ڈوب گیا ہے۔ روٹرز کی رپورٹ کے مطابق بتا رہی ہوں کہ جہاز صومالیہ متحدہ عرب امارات جا رہا تھا جب عمان کی حدود میں جہاز پر حملہ ہوا۔ عملے کے تمام یعنی کہ 14 ارکان تھے اس میں، جس میں کہ وہ عمانی پوسٹ گارڈ نے ان کو بچا لیا۔ اب حملہ کس نے کیا، ابھی اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی۔ اب وینسڈے کی صبح یہ حملہ ہوا ہے، اور جب صومالیہ سے متحدہ عرب امارات جا رہا تھا جہاز میں، اس وقت حملے کی وجہ سے آگ لگی۔ تو ناظرین، اب اس کے بعد جو کہ ایک خط کے بارے میں بتاؤں، یہ کوئی لو لیٹر نہیں ہے، یہ خط ہے اس طرح کا کہ عرب ممالک کا آبنائے ہرمز پر ایرانی قوانین سے متعلق یہ لیٹر لکھا گیا ہے، یعنی کہ اقوام متحدہ کو خط 6 عرب ممالک نے ایک مشترکہ خط لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کو خط ارسال کیا ہے، جس میں ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز پر لگائے گئے یک طرفہ قوانین کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اس میں بحرین جو کہ آپ کو بتایا کہ عرب ممالک ہیں، اس میں بحرین، کویت، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے دستخط یعنی کہ ان کے سائن موجود ہیں۔ اب یہ خط اقوام متحدہ کے سیکرٹری کو لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، چین پر واضح کر دیا ہے کہ تائیوان مسئلے پر امریکن پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی کہ چین نے واضح کر دیا کہ جو تائیوان کا مسئلہ چلا آ رہا ہے اس میں امریکن پالیسی میں ابھی تک کوئی
तब्दीली नहीं आई। अब लबनान इसराइल बराह रास्त मुज़ाकरात का तीसरा अदवार वाशिंगटन में शुरू होने वाला है और लबनान और इसराइल के मुज़ाकरात उस वक़्त शुरू हो रहे हैं जब जंग बंदी मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने के करीब है। तो नाज़रीन, अब इसका भी जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको अपडेट्स दे दी जाएंगी। अब थोड़ी सी डोमेस्टिक न्यूज़ की तरफ आ रहे हैं। डोमेस्टिक न्यूज़ में बाजोड़ पाकिस्तान के एक इलाका है बाजोड़ से सबसे ज़्यादा अफसोसनाक खबर पाकिस्तान मिलिट्री जो कि एक दहशतगर्दी इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ है, यानी कि पाकिस्तान मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ है जिसमें कि 9 जवान शहीद हो चुके हैं, यानी कि 9 फौजी शहीद हो गए और 35 जवान जो हैं वो क्रिटिकल इंजर्ड है, जख्मी है। और इसमें जो शहीद हुए इनमें एक कैंटीन वाला भी शामिल है। अब पाकिस्तान टीवी ने ये खबर नहीं दी लेकिन टर्किश मीडिया ने ये खबर दी है। पाकिस्तान मीडिया इसको छुपा गया है। नाज़रीन, दूसरी न्यूज़ आपको मैं ये डोमेस्टिक दे रही हूँ कि महमूद अचकजई साहब जो कि जिनका ताल्लुक इस वक्त पीटीआई से है, उन्होंने अपना एक बयान दिया और बहुत नरम और बड़ी डिसेंट अंदाज में असेंबली में कि जो लोग बैठे हुए थे उनके सामने उन्होंने कुछ अल्फाजात का इस तरह का इस्तेमाल किए, बहुत ही नरमी, बड़े सॉफ्ट स्पोकन होकर और नपी तुली 2-3 बातें कही हैं जिसमें कि बहुत कुछ आ जाता है। यानी कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुलाकात के बारे में बात हुई है कि उनसे मुलाकात होनी चाहिए और इमरान खान साहब का इलाज जो है उनकी मर्जी के डॉक्टर से होना चाहिए। पहले इनकी ज़बान से आप इनका खुद क्लिप सुनिए। कल परसों छुट्टी होगी, सोमवार को फिर इजलास होगा अगले जुमे तक। हम इंतहाई नरम अल्फाज में दिलचस्पी का ये आलम है, पाकिस्तान को चलाने वाले, पाकिस्तान को तरक्की देने वाले इस हुकूमत का यहाँ 6 महीने से जो पार्लियामेंट चली उन वक्त जो हंगामा था, इन शरीफ लोगों ने सिर्फ इसी असेंबली को चलाने के लिए कॉपरेशन की। मैं महमूद की हैसियत से, जो ओहदा मेरे पास है उसकी इज्जत से, इंतहाई नरम अल्फाज में आपसे कहता हूँ कि आप अपनी हुकूमत से कहें वाज़ेह तौर पे वो हमें बताए इमरान खान से मुलाकात कब होगी। 1। दूसरी बात, उसको कब उसकी मर्जी के अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। हम सियासी कारकुन हम देख रहे हैं, फिंकी मिंकी जो हो रही है, आपकी पार्टी का हाथ मरोड़ने की साजिशें हैं। हम वाज़ेह तौर पे कहते हैं नरम अल्फाज में, इन 3 दिनों में हम अपने अकाबरीन की मीटिंगें बुला रहे हैं। अगर हुकूमत का ये रवैया हुआ, फिर सोमवार के दिन अगर ये पार्लियामेंट नहीं चल रही थी या यहाँ हंगामा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अर्ज कर रहा था जनाब स्पीकर साहब, और जुम्मा है, कल परसों छुट्टी होगी, सोमवार को फिर इजलास। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप सुना है और लेकिन ये महमूद अचकजई साहब जो ये के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े सॉफ्ट तरीके से और बड़े नपे तुले अल्फाजों में उन्होंने कौमी असेंबली में वहाँ पर बताया है कि लेकिन वो आगे से अब बैठने वाले जो लोग हैं सामने बैठे हुए हैं वो इतने नरम रवैये के वैसे हकदार नहीं है कि उनके साथ इतनी मीठी ज़बान में इनको बयान सुनाया जाए और उनको समझ भी आ जाए। समझ तो आता है, जानबूझकर ये हरकतें करते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए और इमरान साहब का इलाज होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नहीं तो फिर कौमी असेंबली में मंडे से क्या होगा, उन्होंने थोड़ा सा थ्रेट भी कर दिया है बड़े तरीके से। तो नाज़रीन, इसके बाद पाकिस्तान में बड़े अच्छे-अच्छे काम हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान नंबर 2 कामों में जो है वो बहुत आगे ज़्यादा तरक्की कर रहा है क्योंकि फेक हुकूमत बैठी है तो इसलिए काम भी बड़ी आसानी से ये हो जाते हैं। नंबर 2, अब आँखों के लेंस के सिलसिले में मैं आपको दिखा रही हूँ एक क्लिप कि आप देखें कितनी सफाई से ये नंबर 2 लेंस तैयार हो रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि उसमें जो पैकिंग है वो उन्होंने उसका स्टैंडर्ड नहीं कम किया, उन्होंने इसका स्टैंडर्ड यूएसए की पैकिंग वाला दिया है। ये पहले आपको एक क्लिप खुद देखिए। लोग अपना मास्क वगैरह लगा लें, आपके पर्दे का ख्याल रखा जाएगा, एहतमाम किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से यहाँ पर काम करते हैं? 14 साल। जी 14 साल। क्या काम करते हैं? ये लेंसों का करते हैं, लेंस पैक करने का। पैकिंग। हाँ जी। तो इसके लिए पहली बात तो ये कि आपको लेंस पैक करने की इजाजत ही नहीं है कानूनी तौर पर, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। लेंस की हाइजीनिटी का और उसकी सफाई का ख्याल रखने के लिए क्या क्या माहौल है? ये ऐसा ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपके सामने ही है। कितने पैसे देते हैं? 35। 35,000 अ मंथ। आपको इतना ही है। 35,000। 30 है। कितने अरसे से कर रहे हैं आप? 14 14 साल से। यानी आप लोग तो बहुत अरसा हो गया इनके साथ ही, ये इसी तरह काम चल रहा है। इनको कभी किसी ने नहीं पूछा ये क्या चीज है? ये सारे डब्बे आपके हाथ के पैक किए हुए हैं? जी ये सारे डब्बे आप लोगों के हाथ के पैक किए हैं? जी जी। वो ओनर बता रहे हैं कि आप बेटियां हैं उनकी, वो कह रहे हैं आप एम्प्लॉय नहीं है, नहीं बेटी, आप तो तनख्वाह पे काम करती हैं। आप बता रही हैं आप तो नहीं, हम नहीं बेटियां, बेटियां नहीं है, जॉब करती हैं। जॉब करती हैं। यानी उन्होंने बार ये भी कह दिया कि जी वो तो बेटियां हैं हेल्थ को। यहाँ पर एक्सपायरी भी चेंज आप लोग करते हैं? जी जी आप लोग भी चेंज करते जी हैं? करते हैं। कितने कितने साल की एक्सपायरियां चेंज कर रहे होते हैं? 3 4 साल की, 5 साल की। स्टिकर ये ला कर देते हैं? स्टिकर कंप्यूटर से निकालते हैं। खुद निकालते हैं प्रिंट? जी, वाइट प्रिंटर पड़ा हुआ है, उसमें से निकालते हैं। इनकी की है? हाँ जी। ये क्या चीज है? ये वो है इनके डब्बे इन्होंने खुद प्रिंट करवाते हैं? जी। कहाँ प्रिंट करवाते हैं डब्बे? ये प्रिंटर से। किधर? इन्हीं के पास नंबर है, ये मुझे नहीं। इनको पता है? हाँ। डब्बे प्रिंट करवा के अलहदा आते हैं, माल अलहदा आता है कि इकट्ठा सारा कुछ आता है? अलग अलग अलहदा अलहदा आता है। अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें आती हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि माल पहले आ जाए और डब्बे ना पहुंचे हो, तो फिर क्या करते हैं? फिर वो सेव कर लेते हैं, उसको बाद में पैकिंग करते हैं। जब प्रिंटर से आ जाए माल तो फिर उसके बाद? हाँ जी। ठीक हो गया। यानी आप इस चीज को कंफर्म समझती हैं कि ये वाकई ही प्रिंटिंग यहाँ पर है? जी। अल्लाह आपकी आसानी का मामला फरमाए। ये लेबलिंग मटेरियल है जी? जी जी। ये जो आउटर कार्टन है ना, इसी में इसकी लेबलिंग भी होगी। हाँ। ये इसने लेबलिंग भी के लिए भी बनाया है। ऑफ्थेल्मिक सोल्यूशन है जो कि आई के अंदर सोल्यूशन है। इसमें सबसे मेन जो चीज है उन्होंने लिखा है कि सिंगल यूज स्टीराइल सोल्यूशन। अब ये स्टीराइल सोल्यूशन का मतलब है कि बिल्कुल जरासीम से बिल्कुल पाक है। तो ये इनके आप पास इसको एक दफा यूज कर सकते हैं और इसको स्टेरिलाइज्ड है और इसको जी जी जरासीम जी नहीं है जी इसमें। बिल्कुल। इसमें रहते पैक हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब इसमें देखे ना कि ये जो मेन चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें इन्होंने लिखा है कि यूएसए। अब यूएसए की पैकिंग इनके पास क्या कर रही है? ये जो सोल्यूशन है, ये तो यूएसए में बनेगा, वहीं पे पैक होगा। पाकिस्तान में तो बनेगा भी नहीं और पैक भी नहीं होगा। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जी दवाई बनेगी या जो प्रोडक्ट बनेगी वो यहाँ पर पैक होगी। क्या बात है। वैसे मुझे मजा आया, हमने चाइना को खूब टक्कर दे दी मुझे लग रहा है। तो नाज़रीन आपने ये क्लिप देखा है और इसमें ये भी बताया गया कि इसकी एक्सपायरी डेट भी इन लोगों ने 3 4 साल आगे बढ़ा दी है। इतना पाकिस्तान तरक्की कर रहा है नंबर 2 कामों में। ये सिर्फ आपको इसलिए ये डेली चीज़ें थोड़ी सी बताई जाती है, दिखाई जाती हैं, ताकि आप लोग जब अपनी कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, आंखों के लेंस लेने जा रहे हैं। पिछले वीलॉग्स में मैंने आप लोगों को क्रीमों के बारे में बताया था, मेकअप के बारे में बताया था, फिर उसके बाद टूथपेस्ट के बारे में बताया था, इस तरह की चीज़ें, ताकि आपको अवेयरनेस हो कि वो लोग शालमी में और कोई शानदार का इलाका है वहाँ पर किस तरह की ये नंबर 2 चीज़ें खुद ही तैयार कर रहे हैं और पैकिंग जो है वो दूसरी इस्तेमाल कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज वाली। तो लेकिन कीमतें ये लोग वही ले रहे हैं। फिर उसके बाद नाज़रीन आप देखें कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है हुकूमत ही जाहिल बैठी तो अवाम और ज़्यादा जाहिल हो जाएगी। अब जहालत का ये आलम है कि पाकिस्तान में आप किसी को पुराने कपड़े दें तो वो इसका किस तरह का इस्तेमाल कर रही हैं, यानी कि तवीज़ धागे वाले बेकार किस्म के काम कर रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, और वो भी जाके कब्रों में डाल रहे हैं, पता नहीं क्या हरकतें कर रहे हैं। उनका दिल दिमाग किस तरह का, ये किस तरह के काम करते हैं और लोग कैसे काम करवाते भी हैं इनसे। ये पहले आप खुद एक क्लिप देखिए। आपके मैसेजेस पढ़ूंगा। अगर आप अपने कपड़े, इस्तेमाल शुदा कपड़े दे देते हैं, दान कर देते हैं, रिश्तेदारों को, गरीबों में दे देते हैं, बच्चों के कपड़े दे देते हैं इस्तेमाल शुदा, तो ये वीडियो जरा देख लीजिएगा, शायद आप अपना इरादा बदल लें। ये आप मनाजिर देखिएगा, एक कब्र है, कब्र को खोदा हुआ है और कब्र के अंदर से कपड़े निकल रहे हैं।
और कपड़ों के अंदर से कपड़ों के साथ जुड़े हुए इंसानी बाल भी हैं। यानी आप ही के कपड़े, आप ही के जिस्म के बाल आप ही को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो भी ब्लैक मैजिक या जो भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, इन लोगों के खिलाफ पहले तो कानून सख्त कार्रवाई करता है अगर ये आप साबित कर सकें कि किसने किया और क्यों किया। दूसरा ये है कि आप ही के रिश्तेदार बन के, आप ही के अजीज बन के, आप ही के दोस्त बन के, आप ही से आपके कपड़े मांग कर, और बाकी चीजें भी ज़ाहिर जरूरी होती हैं जिसमें बाल और ऐसी चीजें। और ये याद रखिएगा, जितनी गलीज चीजें होंगी उतना ही शदीद ये आपके ऊपर हमलावर होते हैं। इनसे ये आपके ऊपर काले जादू कर रहे हैं। अच्छा, अब सोचें जरा, दौर चल रहा है 2026 का, AI का, दुनिया चांद पे, टेक्नोलॉजी है ना एवरीथिंग, और पाकिस्तानी आज भी जो पीछे रह गए हैं वो इन्हीं कामों में मसरूफ हैं। और करते किस पे हैं? रिश्तेदारों पे। क्यों? आगे निकल गया हसद, हमारे साथ इसके पास तो इतने पैसे थे, हमें घर की छत ना डाल के दी, हमारी बेटी का रिश्ता ना किया, उधर क्यों रिश्ता कर लिया। ये इनके पॉइंट्स हैं हसद के, और इसकी बुनियाद पर ये जो है इस तरह की हरकतें करते हैं। तो एक दफा आप जरा गौर कीजिएगा कि अगर आपने अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े किसी को देने हैं तो कंसिडर कीजिएगा, इस्तेमाल शुदा क्यों देते हो भाई, नहीं ले दो, अपनी जान से अजीज तो नहीं है। सो दिस इज द वीडियो जिसने आंखें खोली हैं। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा है कि वो कब्रों में इस्तेमाल शुदा जो कपड़े हैं जो किसी के गरीब को दिए जाते हैं कि उसके इस्तेमाल के लिए, वो उनको बांध बूंद के कब्रों में डाल रहे हैं। पता नहीं कौन कौन से मंतर शंतर पढ़ते हैं, क्या करते हैं, और इनके मंतर असर भी करते हैं। तो इनके ये जो जितना तावीज़ धागा ये हुकूमत पे जो लोग बैठे इनके ऊपर क्यों नहीं करते हैं? इनके ऊपर करें, अपनी जान छुड़ाएं और खुद अच्छी जिंदगी गुजारें। ये सब उन लोगों को ही बेवकूफ़ बनाया जाता है जो बेवकूफ़ बन रहे हैं। ये सब जहालत का नतीजा और कुछ भी नहीं है। जो करने वाले वो अपने पैसे कमा रहे हैं, उनको पता है कि इनको हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, और करवाने वाले भी जाके अपने पैसे को ज़ाया कर रहे हैं। और जो चार कपड़े इन लोगों को गरीबों को दिए जाते हैं, भेजे जाते हैं, वो भी इस तरह के फजूल कामों में ये लोग ज़ाया कर रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये लोग क्या हरकतें करते फिर रहे हैं। तो नाज़रीन, मेरा चैनल जी 7RYK, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आजकल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना शुरू किया हुआ है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।